اگر دودھ حلال ہے تو پھر ہم ٹھیک ہے ایک مولوی کہندا آدم جڑے سی نا جٹ ہن انہاں کو ڈگا ہوئے ہیں بھوئے بھی ہے نہیں انہوں ثابت کرن دو نا اپنا گجر صاحب تہاڈا دعویٰ یوٹیوب تے موجود ہے کہ تسی کہا ہے کہ مسیح علیہ السلام گجر فیملی سے تعلق رکھتے، ثابت کرو قرآن دے وچوں۔ وہی اللہ کے بندہ ثابت کرو قرآن بھی سے. آپ سارا دن یہ کہتے ہو ثابت کرو قرآن بھی سے، اور استنباط کرنا پڑتا ہے نا پھر. ہم قرآن سے باہر نہیں جاتے نا، تسی صرف دین تو باہر جاندے ہو، قرآن تو باہر جاندے. یہ مطالبہ جو ہے نا، یہ قرآن سے باہر کا ہے. یہ مطالبہ ہی قرآن سے باہر کا ہے. یہ جو مطالبہ ہے، ہاں جی بچے اسی مانتے ہی نہیں قرآن تو باہر اچھا ہاں اچھا وہ بات تو پتہ نہیں کہ کہیں کوئی کرنے لگا تھا، کہیں رخ کسی اور طرف موڑ دیا. وہ میں کہنے لگا تھا، وہ ایسے کہہ رہا تھا، ان کے سننے والے جو تھے وہ کہتے ہیں واہ چھا گیا بندہ ہمارا، یار سبحان اللہ، اس نے قادیانی کو جھوٹا ثابت کر دیا. وہ لاجواب ہو گئے، وہ کشمیر نہیں ثابت کر سکے. تو جو عقل والا بندہ وہ تو پتہ نہیں غیرم کے اندر لوگ ایسے ہیں جو عقل والے ہیں، تو یہ سوچتے ہوں کہ وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ مد نہیں کرتا، آسمان پہ کر سکتا ہے. پھر ایک بہت بڑی دلیل ہے جو پاگل لوگ کو، جاہل لوگ جو کہتے ہیں نا، ہم جیسے محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ دلیل تو چیلنج کے ساتھ ہے نا کہ جسم اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہی نہیں ہے، کسی کا گیا ہی نہیں ہے، کسی کے رشتہ دار کا گیا ہو تو وہ جس طرح آسمان نہیں ہے اس طرح آسمان پہ حفاظت بھی نہیں ہو سکتی. آسمان کتنے آسمان کے اوپر جہاز اڑ رہے ہیں، سب لفافے اڑ رہے ہیں، بادل بھی ہیں، سب کچھ ہے. بادل کے اوپر بھی آسمان ہے، نیچے بھی آسمان ہی. اب یہ مطلب یہ تو شور و غل ہے. اسپیس کو آسمان کہہ رہے ہو. ہاں، اسپیس کو جو جہاں ہماری نظر نہیں کام کرتی اس کو ہم آسمان کہتے ہیں. جہاں نظر کام نہیں کرتی وہاں اس کو آسمان کہتے ہیں. ہاں، ہم یہ نظر کا دھوکہ ہے نا، نظر کا دھوکہ ہے. اچھا محمد احمد بھائی، جی 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 کریں. اللہ نور السماوات والارض جو ہے، یہ اس میں پھر کیا کریں گے؟ اس پہ کیا کریں گے؟ پڑھ لیا، اب اس کو بتائیں کیا ہے یہ آسمان کدھر ہے، کہاں ہے. پڑھ تو لیا ہم نے. وہی پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے. ان سے پوچھ رہے ہیں. میری نظر میں تو آسمان ایک ایسی چیز ہے، ایک بلند مقام ہے جس کا ادراک انسان کے پاس ہے ہی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو کبھی پا ہی نہیں سکتا انسان. اور وہیں پہ اللہ نے قرار پایا ہوا ہے، اور اس کی ماہیت، اس کی حقیقت انسان کو نہیں پتہ. باقی دنیا جس کو آسمان کہہ رہی ہے سر، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسپیس ہے، جسٹ اسپیس بس. میں حیران ہوں، اوپن ہے جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اور جو کلاس میں یار اس زمین سے تھوڑا اوپر جا کے دیکھو، آسمان چاروں طرف نظر آتا ہے. یہ جو خلائی اسپیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باہر 50 لاکھ گلیکسیاں اور ہیں. یہ چھوٹی سی ایک نقطہ ہے، نقطہ زمین جو ہے. اور دیکھو نا، ایک بال کو، ایک گیند کو ہاتھ میں پکڑو، جب ہم گیند کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو 2 انگلیاں اوپر ہیں، انگوٹھا سائڈ پہ ہے، 2 انگلیاں سائڈ پہ ادھر چلی جاتی ہیں. اب اسی کو دنیا سے بناؤ نا، گلوب ہے نا ہمارا. اب یہ اوپر والی 2 انگلیاں ان کا آسمان کون سا ہے، اور جدھر انگوٹھا ہے ان کا آسمان کون سا ہے؟ اوپر. ویسے محمد بھائی، جب یہ سب کا ایکسپیرینس ہے موسٹلی کہ جب آپ جہاز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کو نیچے بھی آسمان ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. جب 39,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کبھی غور کریں، آپ کو نیچے بھی آسمان ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں اوپر بھی نیچے بھی، جس کو ہم معاملہ آسمان بڑا سمجھتے قاتل ہیں. دکھاوا چلے. بادل ہوتے ہیں وہ. بادلوں سے اوپر چلے جائیں نا، پھر بھی ہر طرف آسمان نظر آتا ہے، کوئی نظر ہی کوئی چیز نہیں آتی. جس کو ہم آسمان سمجھتے ہیں نا، وہی بالکل صحیح کہہ رہے آپ صاحب. آسمان کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی فزیکل چیز ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے 6 دن میں زمین بنائی، 6 دن میں آسمان بنائی، یہ کیا ہے پھر؟ بتائیں نا کدھر ہے وہ. زمین تو نظر آ رہی ہے، آسمان کدھر ہے؟ اللہ نے پھر کیا بنایا 6 دن کے اندر؟ مجھے کیا پتا، آپ بتاؤ، آپ پڑھ رہے ہو. لو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے آسمان کا بتا تو دیا ہے. میری نظر میں تو یہ ایک ایسی مقام ہے، بلند ہے، جس کا انسان ادراک نہیں کر سکتا. جدھر جہاں پہ اللہ نے وہ قرار پایا نا، تو ہم اس کو نہیں کر سکتے، پا نہیں سکتے. انسان بنایا انسان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے. یہ خلا ہے صرف جس کو آسمان کہی جا رہے ہو، اسپیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ.
वैसे मोहम्मद अहमद भाई 6 दिन में अल्लाह ने आसमान बनाया, 6 दिन में अल्लाह ने जमीन बनाई, तो फिर जितनी जमीन है उसी के इक्वली आसमान भी होना चाहिए ना, टाइम तो उतना ही लगा है। नहीं 6 दिन नहीं बनाए, 6 दिन में हर चीज बनाई थी। मेरा ख्याल आसमान जो था वो 1 दिन में बनाया था कि पता आधे ऐसे करके वो 6 दिन में कुल कायनात बनाई थी, 7वें दिन अल्लाह ने रेस्ट किया था। तीन दिन में जमीन और 3 दिन में आपकी आसमान। हेल्प कर रहे हैं, एक अहमदी भाई आपकी हेल्प कर रहे हैं, कह रहे हैं 6 अदवार कहें, दिन ना कहें, 6 अदवार की तख्लीक हुई है। तो साइंस की जुबान में शायद इसको हम एवोल्यूशन के प्रोसेस एंड डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के वो 6 कहते बनते हैं। तो जो मैं हमारा में बात कर रहा था ना, वो ये थी कि ये जो एक यानी कि अमूमी तौर पर उन्होंने एक अपना नज़रिया बना लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, और दिमाग में वो बात बैठ गई है, उनके लिए ताज्जुब नहीं है। ये ऐसे ही जैसे एक इंसान फौत हो जाता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन जब जो ऐसा थोड़ा गुजर जाता है फिर इंसान जो है ना इस्लाह कर लेता है अपनी आहिस्ता से कि उसने वापस नहीं आना है। इसी तरह इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि वो आसमान पर गए हुए हैं, यानी कि एक विरासत में मिला हुआ अकीदा है। और सिर्फ गायब के ऊपर जो ईमान हमारा है ना वो अल्लाह ताला पर है। मेरा सवाल नहीं समझ रहे आप लोग कि अल्लाह ताला ने कुरान में लिखी है ना ये आयत मोहम्मद अहमद साहब जी जी कि 6 जमीन व आसमान थे, ये जमीन बनाई, आसमान बनाए, फिर चरिंद परिंद, फिर पहाड़, और फिर रेस्ट किया ना। हाँ जी तो ये भी है कि अल्लाह ताला का एक दिन 1000 साल के बराबर है, गालिबन ये हदीसों में है। हाँ जी 1000 साल नहीं, कुरान में भी आए थे। हाँ जी 1000 सालों के बराबर है अल्लाह का दिन। जी तो वो फिर कौन वाला लफ्ज़ अल्लाह मतलब के 1000 दिन में 1000 साल का एक दिन है, 6000 साल में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई। बहुत आला, बहुत आला। तो वो कौन वाला लफ्ज़ कहा गया, कौन कहते थे हो जाता है। बस कौन का फलसफा यही है ना, एक बच्चा भी जब पैदा हो रहा है कुन फया कौन से ही हो रहा है, मगर आपके टाइम पैरामीटर के अंदर रहते हुए उसको 9 महीने लगते हैं। एक फल एक सब्जी अपना टाइम लेने में 40-45 दिन 50 दिन जो भी है उतना दिन लेती है। तो अल्लाह ताला की सारी जितनी भी तख्लीकें हैं उनकी टाइम की जो डिफ्रेंशिएट अल्लाह ताला ने किया हुआ है उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मिलती है। अब एक मक्खी आपके हाथ पे बैठी है ना, तो आप उसको हटाने के लिए हाथ करते हो वो फटाफट से निकल जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि उसको आपका हाथ इतना स्लो आता है, वो अपनी तरफ नज़र आता है ना, वो ईज़िली आपको वो वहाँ से स्केप ले लेती है। तो सबका डिफरेंट अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ताला की जो कहते हैं ना कि हर दफ़ा अपनी नई शान में आता है अल्लाह, तो अल्लाह ताला की शानें बिखरी पड़ी हैं दुनिया में। ये सारी होता है सारा ये कुछ सारी कुन फया कहानियां कून पढ़ से के तो ये सारी कहानियां पढ़ के अजीब ही लगता है मुझे तो। हाँ, जो समझ नहीं आता वो अजीब ही लगता है। कौन फया कौन के बदले में जो समर मिलता है वो तो लाजवाब। देखें अल्लाह ताला लोगों को औलाद देता है, फिर वो खुशियाँ देता है, उसको वो पालते हैं, उसके साथ दिल बहलाते हैं, फिर बड़ा कर लेते हैं, उससे फिर उम्मीदें लगाते हैं, फिर वो आगे औलाद चलते से। ये तो निज़ाम कुदरत। हर चीज़ कुन फया कून से होती है। नंबर कौन सी चीज़ है जो कुन फया कून से नहीं हो रही। ये राम कहानियां ऐसी बनाई हुई हैं लोगों ने जो किसी के दिल में आता गया लिखता गया ना, या उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो काबिल फहम, मतलब काबिल फहम तो नहीं कहना चाहिए इसको कि मुझे के बंदा इसके अतबार के पन्ने किधर से कोई काम मिला देते हैं, चीज़ों को समझ नहीं आती। सर जिस दौर में आ रहा है कुरान उस दौर को भी नहीं भूलना चाहिए। 1500 साल पहले लोगों को पता ही नहीं ऊपर क्या है क्या नहीं है। काफ़ी सारी मिथ चली आ रही है, वो मिथ भी सब बनती रहती हैं मजबूत। ये सब झूठ है भाई, ये सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा खुतबे के फौरन बाद ही अहमदी बटन ऑफ कर दिया। नहीं मैं कह रहा हूँ जो मैं बात पढ़ रहा हूँ सारी कहना सब झूठ ही लगता है। ऐसे ही अली भाई कुछ कहने लगे थे। जी मोहम्मद अहमद भाई, पूरे हुतमे में जो सबसे ज्यादा मजा आया ना वही चीज आई है कि खुद पीर बनो, पीर प्रस्त ना बनो। तो ये जो हमारे सामने आज का दिन है, ये जो मैं हुतबा सुना ये तो टोटल डिफरेंट दुनिया थी। जस्ट इमेजिन करें उस टाइम में जाएं, उस दौर की चीजों के बारे में आपने जी लगता है मार खानी तुसी नाम दिया करो
तुसी कहना चाह रहे थे हमें कुरान वो दिया हजरत याद आ गई, मसीह क्यों वो ने बातें नहीं, करते हो जिस पे अमल नहीं ओ करते? बात तो सुन ले, सही है। बात ये है, यहाँ तो वो दौर है जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम वाला दौर है, यहाँ आज का दौर है। इनमें दो दौर है हमारे सामने। एक दौर की सच्चाई हम सुन रही हैं, दूसरे दौर की रियलिटी हमारी आंखों के सामने है, हमारे सामने यहाँ है हर चीज। तो दोनों दौर नहीं साथ में मिल रहे। मैं अच्छी तरह सुना है कि किसी तरह आज वाला दौर उसमें एडजस्ट हो जाए या सिट इन हो जाए, नहीं हो पा रहा। नहीं हो सकता। किताब की बातें किताब में अच्छी लगती हैं, किसी की बिल्कुल, हाँ जी। रियल लाइफ में ये मुझे, क्योंकि मैं आपके साथ बैठता हूँ, इतनी शिद्दत पसंदी आपके लिए मैं देता हूँ, हालांकि आप में भी बहुत शिद्दत पसंदी है, मैं ये भी मानता हूँ वैसे। पर जो नहीं, जो सच है वो सच है। तो जो शिद्दत पसंदी आपके लिए होती है, ये तो फिर होनी नहीं चाहिए। यहाँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वो तलीम दुरुस्त थी, या आज वाली तलीम जो इधर चल फिर रही है वो दुरुस्त है। दोनों चीजें दुरुस्त नहीं सेम टाइम में हो सकती। मैंने आपको बताया ना, हकीकत की दुनिया और होती है और किताबों की दुनिया और होती है। वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, मज़ा लेना हो तो पढ़ा करें, सुना करें। दैट्स इट। रियल लाइफ होती है। वासे खमसा कुछ और है, ख्यालात, तसव्वुरात, वहम, ख्वाब कुछ और होते हैं। मैं सोशल मीडिया से ना थोड़ा टाइम ऑफ लेने लगा हूँ, क्योंकि ये बाकी ये तो हम बैठते भी उन लोगों के साथ हैं जिनके जो कंसेप्ट है वो थोड़े डिफरेंट हैं, और ऊपर से ये चीज़ें हम सुनते हैं और लोगों की जब रवैये नज़र आते हैं, तो ये चीज़ें तो वो मुझे खुद महसूस हुआ है कि वो इतनी अच्छी तलीम और जो आज की रियलिटी है, ये दोनों साथ में नहीं बैठ रही। तो क्या हर चीज़ की झूठ तो नहीं हो सकती? ये मेरे ज़हन में आज आया, खुतबा सुनते हुए आया। परसों आपको याद हो कि पता नहीं कल मैंने क्वेश्चन किया था कि सोशल मीडिया से दूर हो, जो अपने अपने मस्जिदों में, गिरजों में, पंडितों, वो जो है मंदिर है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम दें, अपना अपना मज़हब बचाना है। सोशल मीडिया पे रहेंगे, निकल जाएगा हाथ से सारा कुछ, खत्म हो जाएगा। और हालांकि मैं समझता था कि मैं बड़ी चीज़ें समझी हुई हैं, पर मसला ये, वो चीज़ें समझने उनमें कुछ वो मसला नहीं है। मसला ये होता है कि जो चीज़ हम बोलते हैं, जो असूल हम बनाते हैं, ये सोशल मीडिया पे, मैं ये जमात अहमदिया नहीं बोलता, सोशल मीडिया से मुराद हम देखते हैं सोशल मीडिया सही कहा, बहुत जबरदस्त। अच्छा मोहम्मद अहमद पापी, मौलवी अब्दुल हकीम, डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब की तरफ शायद इनका इशारा है, अल्लाह जाने। बात समझने वाले समझ जाते हैं। मोहम्मद अहमद भैया, आपने भी अपना इंजेक्शन बीच में ठोकनी होता है। जी जाद भाई। तो एक तो मैं पता नहीं, अब दोनों को मैंने जवाब, मैं कह रहा था, आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि यहाँ सोशल मीडिया के हालात पर कुछ आप कह रहे थे, कुछ आप फरमा रहे थे इस पर। तो मैं ये कहने लगा था कि यहाँ सोशल मीडिया पर अगर जो लोग आते हैं ना, वो दूसरों से ये तकाजा ना करें कि वो हमारे मुताबिक चलें, क्योंकि ऐसा दुनिया में कभी हुआ नहीं है कि वो हमारे मुताबिक चलें। हाँ, इसके लिए सिर्फ दुआ की ख्वाहिश है कि दुआ कर सकते हैं ताकि वो भी ऐसे हो जाएं। ये है कि आप अपने ऐसा असर सूख छोड़ें, आप ऐसे अपने जज्बात और नज़रियात लोगों को दिखाएं जिससे जो बिगड़े हुए लोग हैं ना वो संवरने की कोशिश करें, अगर हो सकता है तो। अगर वो नहीं होते हैं तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, उनको छोड़ दें, लेकिन अपने नज़रियात को कमज़ोर ना बनाएं, इस कदर कमज़ोर ना बनाएं कि वो आखिर पर ये पता चले कि सारे ही ऐसे ही, सारे यही क्यों कर रहे हैं कि इधर वो है ही नहीं है, वो है ही नहीं है। कोई तो बना के दे ना, आप अपना पेश कर दें, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब कुछ। और बाकी मोहम्मद को मैंने ये कहना था कि ये व्हाट्सअप की फैक्ट्री बनाकर छोड़ जाता है, फिर आगे चलता है। मैं समझू ये टिकटॉक जो है ना, ये ऐसे जैसे लोग कहते हैं पाकिस्तान से हम अमेरिका चले गए, इस वक्त लोगों ने यही समझा हुआ है और व्हाट्सअप को खुदा कह दिया है। वो पीछे अपने ग्रुप बनाया हुआ था, उधर बात जाते नहीं हो, और चार लोग आते हैं साहब अहमद साहब नीचे लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया ने निकाब उतार दिया है, उसका उतार देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो निकाब उतार दिया, इस्लाम का भी निकाब उतार दिया, कुरान का भी उतार दिया, जो हमने लिहाफ चढ़ाए हुए थे। अली अकबर सुबह एक मुरब्बी साहब के बेटे, दो बेटे आए हुए थे एक ग्रुप में, जो कि वो लगाते हैं गालबन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा याद।
तो वो सामने बैठते हैं कैमरे के सामने ही। वो उधर बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे, जो बातें सुना रहे थे ना, मैंने सुन के बातें उनको मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आपका तसलसल अभी कायम है। अक्सर लोग जब दीन में गहराई में चले जाते हैं तो फिर बिगड़ भी जाते हैं। उनका उनका उन्होंने पंजाबी कहते हैं दिल भर गया उनका, क्योंकि वो रोज़ एक ही बातें सुन सुन के थक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको इंजॉय करते हैं और समझते हैं कि हर सुबह होने वाली जो है ना, वो उसमें हम ये फिर इंजॉय करेंगे और फिर इंजॉय करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में तस्वर होना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला रहम और फजल करे। जो थक गए, वो जो डर गए वो मर गए, कहते हैं। वो एक सनम बलोच करती थी पुरान पाकिस्तान में, वो कहती थी जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं चाहिए, घबराना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये बड़ा आगे आगे चलते हैं, बात आगे चलाते हैं फिर। आप डर तो आप रहे हैं गुजर साहब, है। डर तो आप रहे हैं जनाब गुजर साहब। अल्लाह से डरता हूँ ना, बंदू तो थोड़ी डरता हूँ। जी, अल्लाह से डरता हूँ बस, और किससे नहीं डरता बंदों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते आप। है। बंदों से डरते हैं आप, अल्लाह से नहीं डरते हैं। मैं बंदूक से डरता, आप कह रहे थे, मैं आपकी बात एहतरामन सुन लेता हूँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं डरते हैं आप, चले आपने कह इसीलिए तो किसी की बातें किसी को सुना रहे हैं ना, सीधी बात करें ना आप। सीधी बात करूँ, ए दिन सिरातल मुस्तकीम, ए दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता क्या कर लो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। सही है। सीधी बात। तो फिर बात अगर किसी की करें तो उसको डायरेक्ट कहें ना, इधर उधर ना सुनाएं। नहीं, वो मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैंने मिसाल दी है। हाँ जी हाँ जी, ये डरते हैं ना इसीलिए नाम नहीं ले रहे थे। अच्छा, नाम भी ले लेता हूँ, आप तकादा करते हो वो भी ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे याद कर लेना नाम उनका क्या है। उनके सर पे बाल नहीं है मेरी तरह, और वो दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है, और क्या कैमरे के सामने बैठते हैं और बड़े दिलेरी से तबलीग करते हैं माशाल्लाह। और उनके वालिद साहब का नाम गालिबन यूसुफ है, उनका अपना नाम मुझे याद नहीं भी आ रहा। आगे चलते हैं, नाम को बाद में याद कर लेंगे। और अब आगे चलते हैं जी। अपना क्या नाम है आपका? चौधरी गुज्जर साहब, आप कुछ बात करेंगे? 776 साहेब, इसमें आप सब छोटी सी ले लें। मुझे लगता है जाहिद भाई साहब उनकी तरफ ही इशारा है, जो सुबह आ जाए थे, और मोहम्मद अहमद भाई तो उनके शायद अल्फाज थे कि यहाँ पे उलमा गुमराही भी फैलाने के लिए आते हैं, शायद उनकी बात हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपके सिंगल नहीं पूरे होते, आप बोल पा रहे हैं अब, लेकिन आपका माइक नहीं खुला। इन्होंने चार्जर लिखा है, मिला था अपना नाम ना। नहीं, चौधरी चौधरी जी कितों आ गया? चौधरी जी है ना, चौधरी जी है। चार्ज होते जाएंगे, चार्जर कोई नाम छड़ी होना भी। चौधरी जी लिखे उन्होंने सर। चले जी, आगे चले हैं। यहाँ पे बोरिंग गुफ्तगू बनाते थे ना, तो आप सब माजरत पर नेक्स्ट टाइम ना इस पे थोड़ा वो देखिएगा कि मौके पे नहीं पा रहा था ना, बिला मौका पर ना, पहले ने मना किया हुआ है ना।
वो तो पता ना, पर वो सब हर बंदे ने आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ना, वो जैसा भी दे आपने उस पर बटल देना जी। वक्त की रागनी शुरू कर देते हैं उसको इसमें अली अकबर एक और मसला भी है ना, एहसास से कमतरी का शिकार हो चुकी है हमारी जो बरसीर की दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तानी, जिनको कुरान नहीं आता। हम बेशुमार जो दोस्त जैसे लोग भी थे ना जो कुरान के हाफिज नहीं है, तो वो फिर उसके ऊपर एक आयत, जैसे वो ज़फ़रुल्लाह शाह साहब है, वो सुबह अली अकबर कह भी रहा था कहीं कीट कहीं का रोड़ा, कह भी रहा था सुबह, तो वो इधर की आयत जो बिल्कुल से मजमून से जुड़ती भी नहीं है उसको ला के पेश कर देंगे। मेरा ख्याल उससे बेहतर तो ये है कि सादगी में अगर ये बंदा कह दे कि सूरत फातिहा पढ़ लें, इसी के अल्फाज कहते हैं, सारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, सारी वकालत कर रहे हैं सारे, तो बजाय इसके कि ऐसे ही आते पकड़ पकड़ कहते हैं जी ये देख लें इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ कल है, बस वो पढ़ ली और फिर कह दिया आसमान पर चले गए। वो आ गए राजा साहब, फिर तशरीफ ले आए राजा साहब के साथ, लगता है जुमे के बाद फिर आ गए हैं। अगर कोई कसर रह गई तो फिर आके सुना देते हैं वो। करा सरफर साहब माशाल्लाह अच्छा दिन कर 8 घंटे नॉर्मल है, 12 घंटे सो लेना उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, एक दफ़ा ना बॉडी थक जाती है। 2000 साल से कोई बंदा सो रहा हो, जब उठेगा उसकी क्या हालत रहेगी? वो आगे दसो ना जरा सुनो। ये कितना बड़ा सवाल है, ये कितना बड़ा सवाल है। वो कहते हैं कि वफात मानता हूँ, लेकिन इस सूरत मानता हूँ कि वो सो रहे हैं जी। और वो उनका अपना ही कुलिया होता है, वो सारी दुनिया से अलग ही सोच के रात को सोचते रहते हैं, सुबह आके इधर बयान करना शुरू करते हैं। अल्लामा अली अकबर साहब, हाँ जी, जब हज़रत ईसा वापस आ जाएंगे कुरान तो उनको कह रहा होगा ये आसमान पर बैठे हैं, तो वो आयतें मनसूख हो जाएंगी उस वक्त। हाँ जी, हाँ जी, वो निकालेंगे ना आके ना, नासिक मनसूख के चक्कर में आ जाएगी, नासा मनसूख तो पहले कहते हैं फिर पक्के हो जाएगी। वो निकालेंगे, पहले भी निकाली है ना कुछ, पहले भी उमर फारूक वगैरह के जमाने में भी कुछ निकाली गई थी, वो रजम वाली आयत निकाली गई थी अंदर से ना, तो इसलिए सिलसिला अफदार है जब वो फौत हो जाएंगे उनको दफन करके आएंगे, फिर आके सारी आयतें निकाल देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, ये सारी आयतें बाहर निकाल देंगे, कुरान मजीद में तशरीफ करेंगे। उनके अंदर कोई अल्फाज ऐड, उनके अंदर ਇਹ सर्च कर मोहम्मद अहमद कि पहला कुरान प्रिंट कदों होया। चलो वो तो कर लेंगे, लेकिन सिलसिले में कि उधर अल्फाज ऐड करनगे कि अगे लिखे उठा लिया, तो अगे जाके ऐड कर दे उठा लिया था, तो था अंदर डाल देंगे। मेरा ख्याल निकालेंगे नहीं आयत को, मैं बनी इसराइल का नबी था, वो था। वो तो हजे भी है कि खाया करते ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮੂ ਦੀ ਖੜਕਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚ ਪਾ ਖਰ 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 ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਘਰ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਇੱਥੇ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਲੀਮ ਨਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਚਾਦਰ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ, ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਓਗੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬਾਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2-3-4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰਾਟਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੌਰ ਸਰਵਿਸ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੱਕ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਾਹਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यार मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, बल्कि 2 बताने वाली हैं।
ایک تو یہ کہ جب کلاؤڈ سرفر بات کر رہا تھا نا تو وہ جو آیت وہ کہا تھا کشمیر دکھاؤ، تو سونی بھائی نے توجہ دلائی، وہ آیت بھی مل گئی اور اس کا ذکر کیا تھا. مجھے فون آیا، کہہ رہا کہ وہ آیت بتاؤ نا، تو میں نے بتا دی. میں نے کہا یہ آیت ہے، کہتا ہے اس میں عیسیٰ السلام کا لکھا ہوا ہے. تو میں کہ یار میں بندہ کیا کرے اس دماغ کا اب کہ تمہیں وہ بات کر رہا ہے، ایک جگہ ذکر ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ کا اور بعد میں وہ سیدھا آسمان پہ چلے گا کسی اور جگہ پہ، وہاں پہ تمہیں عیسیٰ السلام نظر آ گئے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فنڈامنٹل رول دے دیا، اصول بتا دیا کہ جو کچھ بھی یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہیں اسی کے اندر ہی جانے والا ہے. اب تمہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام چاہیے؟ تو یہ انسان کا اپنا دماغ ہوتا ہے، پتہ ہے، جس طرح وہ جھک جائے اور وہی اس کو بنا لیتا ہے. کلاؤڈ سرفر بیچارے کا قصور نہیں ہے، وہ اب جو کچھ بھی پڑھتا ہے اس کو اپنے عقیدے کو بیچ میں ڈال کے پڑھ رہا ہے. اس کو اس کے قطع نظر کے اس کتاب کیا کہہ رہی ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو اپنا عقیدہ بچانا ہے، وہ اپنا عقیدہ اس کتاب میں ڈال دیتا ہے. اور اکثر لسنرز اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ یہی کرتے ہیں. جب بہت زیادہ وقت ہو جاتا ہے، ان کے عقائد ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنا عقیدہ کتاب میں ڈالتے ہیں، اس کتاب کی بات کو نہیں سنتے، نہیں سمجھتے. یہ بات شیئر کرنی تھی. اور ایک اور بات بتانی ہے. میں پڑھ رہا تھا ملفوظات، اس میں حضور لکھتے ہیں کہ حقیقت اور استعارہ. حضور لکھتے ہیں، پھر فرمایا انبیاء علیہ السلام کے آنے کے وقت لوگوں کے حالات دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ استعارات کو حقیقت پر محمول کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ بنانا چاہتے ہیں. یہی مصیبت اب ان کو پیش آئی ہے. یہ کوئی ایسا دجال دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آنکھ در حقیقت باہر نکلی ہوئی ہو اور پورے 70 گز کا اس کا گدھا ہو، اور آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بہت مشکل کام ہے، یہ جو ویڈیو ضرور کر سکتے تھے، آپ لوگ کرو گے تو مار کھاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبوتر کی طرح منڈلاتے ہوئے اترے. یہ کبھی ہونا ہی نہ تھا. یہودیوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت یہی مصیبت پیش آئی. وہ یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ مسیح سے پہلے جیسے کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے آسمان سے ایلیا اترے گا. چنانچہ جب مسیح آیا تو انہوں نے یہی اعتراض کیا، مگر مسیح نے ان کو جواب میں یہی کہا کہ ایلیا آ چکا اور وہ یہی یحییٰ بن زکریا ہے. یہود سمجھتے تھے کہ خود ایلیا آئے گا، اس لیے وہ منکر ہو گئے. چنانچہ ایک یہود کی کتاب میں نے منگوائی تھی، اس میں وہ صاف لکھتا ہے کہ اگر خدا تعالی ہم سے مواخذہ کرے گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کے رکھ دیں گے. اے دسو مینوں کیا کلاؤڈ سرفر یہی آیتیں کھول کے نہیں بیٹھ جائے گا وہاں پہ؟ اللہ میں نہیں کچھ کیتا ہے دیکھا لکھے. اچھا کھول کے رکھ دیں گے، کھول کے نہیں بیٹھ جائے گا وہاں گا. یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ ہی ہوگا؟ اب ہمارا دعویٰ تو خود حضرت مسیح کی ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ جس سے دوبارہ آنے کا وعدہ ہوتا ہے. اس کی آمد ثانی کا یہ رنگ ہوتا ہے کہ اس کی خوبو اور خواص پر کوئی دوسرا آتا ہے. یہی دھوکہ اور غلطی ہمارے علماء کو لگی ہے. یہ اصل میں ایک استعارہ ہے جس کو انہوں نے حقیقت پر حمل کر لیا ہے. ایسا ہی دجال اور اس کے دیگر لوازمات کو حقیقت بنایا. عیسائیوں نے بھی دھوکہ کھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد فارکلید کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی. عیسائیوں نے اس سے روح القدس مراد لے لی، حالانکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے. فارکلید سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ فارکلید فارق اور لیت سے مرکب ہے. لیک شیطان کو کہتے ہیں اور فارق کے معنی خدا کرنے والا، یعنی شیطان کو جدا کرنے والا. خدا میں نے پڑھ دیا. فارق کے معنی جدا کرنے والا، یعنی شیطان کو دور کرنے والا. غرض یہ بڑی خطرناک غلطی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے وقت لوگ کھاتے ہیں کہ استعارہ کو حقیقت پر اور حقیقت کو استعارات پر محمول کر لیتے ہیں.
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ जाना है, जो भी इस तरह के अकीदे रखता है, अगर यहूदियों की मिसाल ले ले जिन्होंने धोखा खाया हज़ियाइया से, ईसाइयों की बात कर ले जिन्होंने फारकलीद से धोखा खा के अजीब सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, और हज़रत मसीह वसल्लम, जो कोई भी गर्ज अल्लाह ताला के पास जाने वाला है, ये लोग अल्लाह से भी बहस करेंगे। क्या समझ आई? मेरी बात मुकम्मल हुई। अभी मैं अपना सफ़र थोड़ा सा जारी करता हूँ, फिर कुछ देर बाद आपसे अल्लाह ताला तो अब मेरी आयात पर तदब्बर क्यों नहीं करते, गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला ने ये जो किस्से नबियों के और पुरानी कौमों के बयान किए हैं, ये इनका यही तो कह रहे हैं क्लाउड सर्फर आके कि आप लोग तदब्बर नहीं करते। अगर ये बात समझें तो फिर इनको समझ आए कि कैसे कैसे गलतियां की पुरानी कौमों ने, तो किस तरह वो गुमराह हुए। तो यही काम वे खुद करते हैं और उस पर सोचते नहीं है, ये करें कोई और भी बात। तो मोहम्मद अहमद भाई, ये जो आपने इस्तारा था फिर इसमें बोला है, तो यही तो सारा दिन वो भी बोलती हैं कि इस्तारा तो लेके इन लोगों ने तो धोखा हुआ है ना, इन लोगों को समझ नहीं है इस्तारा की। तो ये बात तो फिर हर तरफ ही चली जाती है, ये जो इस्तारे वाली बात है ना भाई जी। मैं यही तो कह रहा हूँ, इन्होंने अल्लाह ने भी लड़ पड़ा जाके, जिसका जो कीदा बन गया है उसके ऑपोजिट से अल्लाह ने बताना है ना कि वो भाई ऐसी बात नहीं थी, ये है। और अगर नहीं आया, देखो जरा उनके बता रहे हैं, रेफरेंस दिया कि यहूदी कहते हैं कि भाई हमारा सॉर्टेड है, अगर अल्लाह कुछ कहने भी लगेगा ना हमें, तो मैं ये आयत खोल के आगे रखूँगा कि भाई ये साਡਾ कसूर नहीं है, तू लिखना है। वो नहीं, इन लोगों को भी हमने कई दफा कहते हैं कि हमारे पास पूरा जवाब है, हम कह देंगे कि हमारी किताबों में लिखा हुआ था, जो हम उसके मुताबिक समझ रहे हैं, अल्लाह को हम ये जवाब देंगे, ये कहते हैं। उधर क्या जवाब देंगे जब मतलब उधर पहुंचेंगे तो वो कहेंगे कि मैंने तो मसीह मऊद होने का दावा किया था, आप मसीह मऊद बना बैठे मुझे। नहीं, उससे मुराद मऊद ही समझते हैं, मसीह की समझते हैं। जब मसीह मऊद भी कह रहे होते हैं, इसमें समझ मसीह मऊद ही रहे होते हैं, कोई भी उनको वो नहीं समझता। नहीं, जब वाज़े एक बात लिखी है कि उनका दावा मसीह मऊद का है, वही मानते हैं, वही मानते। मसीह मऊद ही कहना लिखना चाहिए जो उन्होंने लिखा है, मसीह मऊद लिखना ये ठीक है, मगर अब अगर मसीह मऊद भी कोई लिख रहा है, उसके अंदर अब ये मख्फी हो गया। मसीह मऊद तो एक जगह भी नहीं कोई लिख रहा ना, सब मसीह मऊद ही कह रहे हैं। हाँ, मगर लिख मसीह मऊद रहे हैं, मान मसीह रहे हैं, ये कह रहा है। ये देखें ना, ये एक जो बात है, खुदा ने ऐसा किया ही क्यों? जब ये बिल्कुल अली अहमद साहब जी बिल्कुल ऐसे ही है, अली अहमद साहब जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ऊपर से मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अंदर से अहमद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं ना, ऐसे समझ लें। नहीं, ऐसे मैं क्यों समझ लूं, जो है वही समझूंगा। समझ आ गई बात? जो आप लिखते हैं वही समझा जाएगा ना भाई, मैं आपके दिल में तो घुस नहीं सकता। सही है आपको तो ये भी नहीं समझ आती है। उन्होंने कहा है मेरा दावा मसीह मऊद का है, मसीह मऊद का नहीं। सही कह रहे हैं आप। वैसे ये करम साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, 73 जो मुस्लिम की हदीस है ना, उसके मुताबिक ये पूरा चटा खोल देता है, कहता है कि ये सारी मेटाफिजिकल आयत है, इसमें जो मसीह है वो भी असल नहीं है जो ये समझते हैं, उसमें जो पर ये बात वो अपनी तरफ से थोड़ी करते हैं, हज़रत मसीह लीब को तोड़ना नहीं, वही मैं कहा ये सही तरह समझते हैं, जो लोग नहीं समझते इनसे समझ ले, जो उसमें जितनी भी बातें की हैं ये होगा वो सारी मतलब सारा के तौर पे हैं, तो ये वहाँ मसीह को सीधा ऊपर से ले आते हैं, बाकी चीजें उसमें मतलब उसकी तशरीह करनी शुरू कर देते हैं, उसकी क्या तवील करनी शुरू कर देते हैं ना, ये प्रॉब्लम। मैंने कभी भाई अली अहमद तवील वगैरह नहीं करता, जो लिखा हुआ मानते ना। मैंने तो जो बात लिखी है, जो उन्होंने लिखा है ना, मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि उन्होंने बात लिखा है कि मैं मसीह मऊद हूँ, मसीह मऊद नहीं। हाँ जी, वही समझता है, हमें पता है लिखा है, हमें क्या पढ़ाते हो, क्या मतलब आपने अकेले नहीं पढ़ लिया है, हमने नहीं कहा पढ़ा, हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है, हम वही समझते हैं। तो मसीह मोहम्मद भी है, मसीह मसीह भी है, मसीह मूसा भी है, मसीह आदम भी है, और क्या क्या पूछना है, और बताएं कि इतना ही भला है। उनका दावा, जितना पूछना चाहते हो उतना बता देते हैं। उनका दावा जो है मसीह मऊद का है।
वो वही कहा ना, जो जो कहते हैं वो सारा कुछ वो उन्होंने कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नेद इब्राहिम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। और को पूछना है, हम तो उनको सब कुछ समझते हैं। फिर दावा उनका जो है, जो उनको मसीह मौद लिखता है या समझता है, वो कम फहम है। आप उन्हें मसीह मौद समझते हैं? ठीक लिखा है जो कुछ लिखा है, गुमन साहब, आप उन्हें मसीह मौद समझते हैं? अच्छा मोहम्मद अमन भाई, वैसे एक सवाल फिर मेरे भी ज़हन में आया है कि पेशगोई तो इसमो अहमद की थी कि जिस तरह भी इसम अहमद होना है, और सलमा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ते हैं, तो ये मसीह और मसीह में भी इतना फिर क्या डिफरेंस है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन्हें मसीह मौद थोड़ा ज़हन में समझते आता हैं? मियाँ साहब, आपको तो जल्दी बात आई है जी, बताएं आपने क्या बताना मियाँ साहब? ये जो जी इसको इस और रंग में भी समझा जा सकता है इस पेशगोई को। कुरान करीम की सूरह ज़ुखरुफ की 58 आयत है, वहाँ पे लिखा है कि जब इब्ने मरियम की मिसल पेश की जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम शोर मचाने लगती है। तो असल में ये जो पेशगोई है ये मसीले मसीह की है, ना कि ओरिजिनल बनी इसराइल के मसीह की। और इसको इस और रंग में भी समझा जाता है, जब ये जो सिलसिला शुरू हुआ हज़रत इसहाक से शुरू हुआ, यानी कि हज़रत इब्राहीम के बेटे, और जो हज़रत सारा थी वो कह रही है कि ये जो तेरा बेटा है ना इस्माइल, ये हमारे साथ हमारी विरासत में शामिल हो ही नहीं सकता। ये बाइबल में पेशगोई लिखी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माइल की नस्ल से थे, बनु इस्माइल की नस्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में बने इसराइल का नबी वारिस हो ही नहीं सकता, वो शरीक होगा। ये अकल के अंधे हैं, ये बात ये समझ ही नहीं सकते इस बात को। अगर बीमारी अगर नहीं बात सुने, आखिरी बात करूंगा, अगर बीमारी यहूदियत है तो इलाज क्या है? मसीहत है। ये जो लोग हैं हमारे मुखालिफ हैं, इस बात को जब समझ लेंगे कि जी कोई ज़ाहरी मसीह आएगा उम्मत की इस्लाह करने के लिए, वो गलती पर है यहूद की तरह। बाकी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद भाई आप मियां साहब बैठे हैं। जी आप साहब, मैं मियां साहब से कह रहा हूँ बैठे हैं आप, म्यूट लगा के बैठे हैं। मोहम्मद अहमद भाई, अगर आने वाले की पेशगोई हो और उसका नाम अहमद हो और तलमा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि मसीह मौद और मसीह मौद में फिर इतना टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। इस पे क्या आप सोचते हैं? मसीह मौद जो है, जो लोग उन्होंने साफ लिखा है, आप उनको मसीह मौद समझते हैं या मसीह मौद? आप रसूल पाक को मोहम्मद समझते हैं कि अहमद समझते हैं? मोहम्मद। तो कुरान में तो पेशगोई अहमद की है। तो उन्होंने अपने आप को राना साहब रुक तो जाओ यार, सरकार मेरी बात तो क्लियर है ना। मैंने कहा है ना कि उन्होंने अपने आप को कहा ही नहीं अहमद, तो मैं क्यों कहूँ? तो फिर अहमद कोई और है, ये बता दीजिए। ये आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो आपको बात का जवाब दे दिया है, आप मेरी बात का जवाब दें कि आप उन्हें मसीह मौद मानते हैं या मसीह मौद? मसीह मौद मानते हैं। उम्मत मोहम्मदिया में मुसलमानों को यहूदी क्यों कहा? क्या ज़ाहिर में यहूदी मानते हैं या खसलतन यहूदी मानते हैं? ये बता दें। हाँ ये बताएं जरा बाप। अली अहमद साहब बताएं। अली मोहम्मद अहमद साहब, अली अहमद साहब से बात हो रही है। मेरा इससे लेना देने में नहीं आप ने क्या मेरी उम्मत यहूद के ऐसे मुशाबे हो जाएगी जैसे एक जूती को दूसरी जूती के साथ। तो ओके, इसका जवाब ये है, किसकी उम्मत ऐसे हो जाएगी? रसूल पाक किसकी उम्मत ऐसे हो जाएगी? नबी पाक ने फरमाया था मेरी उम्मत। हाँ मेरी उम्मत। आप उम्मत में शामिल हैं? एक मिनट, ओके, आप उम्मत में शामिल हैं? नहीं, हम नहीं शामिल। आप उम्मत में, मियां साहब आप हमें तो निकाल दिया आप लोगों ने कि ये उम्मत से बाहर है। हाँ तो आप निकल गए, अब आप उम्मत में नहीं है? नहीं है, नहीं आपने निकाल दिया हमें। नहीं आपने निकाल दिया, आप निकल गए या आप अभी हैं उम्मत में? नहीं, हमें निकाल दिया। पहले ये तो फैसला कर लें, हमें निकाल दिया है, 72 फिरकों ने एक कर दिया है। मुझे ये बताएं, आप निकल गए, आपने कह दिया कि आप नहीं आप ये फैसला करें, हमें निकाला कि नहीं निकाला? आप फैसला अपना नहीं कर रहे तो लोगों से डिबेट खराब नहीं करनी, डिबेट हो रही है यार।
ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ है ठीक है ਬੱਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। और यार इनकी अक्ल में ये बात आ ही नहीं सकती, बनी इसराइल का नबी उसको वारिस बना रहे हैं, वो शरीक है, अगर वो आएंगे तो हजरत सारा कह रही है ये जो तेरा बेटा इस्माइल है ये उम्मत में। अली अहमद भाई से ना प्यार थे ना ऐसे जी, प्यार नहीं यार प्यार से क्या, ये मोटी सी बात है ब्लैक एंड व्हाइट की तरह कि उम्मत में एक शख्स को आगे खड़ा कर रहे हैं, बनी इसराइल का उसकी 2000 साल उम्र हो गई है वो। मियां साहब एक मिनट, मियां साहब एक, यार सारे भाई म्यूट लगा रहे हैं। सब कोई उधार तो नहीं देना, अली अहमद भाई ने प्यार से कर लो यार बात। यार कहने पे उनका ले जाए ऐसे यार, वो प्यार से ही कर रहे हैं ना, जो बंदा प्यार से समझे उसे डांटना चाहिए ना, उनको बात करने दें यार। लोग मियां साहब को क्यों डांट रहे हैं? मियां साहब बात करें, आप इनसे पूछें। मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत सारा जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बहू है वो कह रही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये जो तेरा बेटा इस्माइल है ये पेशगोई है, ये हमारे साथ विरासत में दाखिल नहीं हो सकता, शामिल नहीं हो सकता, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माइल की नस्ल से थे और बनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में एक मसीह की खबर दी है। जो मसीह बनी इसराइल में आएगा वो विरासत में कैसे शामिल हो सकता है, चूंकि ये तो पहले से बोल दिया कि ये शामिल ही नहीं हो सकता इस्माइल अलैहिस्सलाम। मैं हवाला बाद में दे दूंगा, ये कैसे शामिल करते हैं, वो तो शरीक होगा। वारिस वो होता है जो नस्ल में पैदा हो, बाप की नस्ल का जो वारिस होता है वो बेटा होता है, चाचे का बेटा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। इनकी अक्ल मारी गई है, ये ब्रीक पॉइंट को नहीं समझते। एक और मैं पॉइंट आज को समझाता हूँ। नहीं पहले एक जवाब ले लें मियां साहब, एक जवाब ले लें क्योंकि वो लाजवाब हो चुके हैं अली अहमद साहब, पहले पॉइंट पे लाजवाब हो गए। अली अहमद साहब अगे वो सामने फसा लें दे ना, जवाब दे थे। मैं फंस गया। हाँ जी नहीं, इसको अपना आसानी तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ बड़ी लॉजिकली तरीके से। ये जो सिलसिला है ना मूसी सिलसिला, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। देखें बात सुने, गौर से सुन लें यार, लोगों के काम आएगी। वो जो हजरत इब्राहिम कहते हैं मेरे यहाँ कैसे औलाद हो सकती है, मेरी बीवी बांझ है और बूढ़ी हो, मैं बूढ़ा हो चंगो, मेरे यहाँ कैसे औलाद होगी। हजरत इसहाक पैदा हुए। अच्छा, फिर इस सिलसिले का आखिर पता कहाँ पे खत्म हुआ, एंड यहाँ से दायरा शुरू होता है वहां पे आगे खत्म होता है। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे यहाँ कैसे औलाद हो सकती है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे यहाँ कैसे बेटा होगा। हजरत यही अलैहिस्सलाम को पैदा करके एंटीगेट किया यहूदियों को कि तुम नाहक तंग करते हो, कत्ल करते हो नबियों को, तुमसे लिहाजा सिलसिला नसब छीना जाएगा। जो सिलसिला नसब होता है ना, ये बाप से पहचाना जाता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहती है कि मेरी ज़ुर्रियत को और शैतान, हजरत मरियम को शैतान, ज़ुर्रियत शैतान से महफूज रखना। ये जो ज़ुर्रियत होती है मर्द से होती है, ना कि औरत से, तो इसलिए इस सिलसिले को बिल्कुल कट आउट कर दिया। फिर आम आए, आम ने अपनी उम्मत को उम्मत मूसवी के मुशाबे करार दिया और उम्मत को यहूदी कहा। इसलिए इस उम्मत में एक मसीह का नज़ूल होना था, और नाजल का मतलब आपको पता ही है क्या है, आम भी नाज़िल हुए थे। ये है शॉर्टकट। यार राम अली अहमद साहब, आप सवाल आपके पास है कोई तो करें, वरना फजूल बहस नहीं कोई नहीं। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ये है इब्ने मरियम की हकीकत। और गालिब ने कहा कि किस तल में है दिले बीमार, क्या मसीहा फलक से उतरेगा। ये सब लोग मानते हैं कि मसीहा फलक से क्या उतरेगा। ये जो ईसाइयों की एक टीम है इधर इटालिया में, वो कहती है जेसस कम डाउन प्लीज। वो कह रहे हैं कि ईसा तू अब नीचे आ जा, हम वेट कर रहे हैं। वो आ नहीं रहे नीचे। और फिर जिन लोगों ने हजरत मसीह को खुदा बनाया है, अल्लाह ताला कहता है सूरह नहल में कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया वो सब फौत शुदा हैं, कोई भी जिंदा नहीं है, और वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब कहते हैं वो मुर्दों को जिंदा करते हैं। ये यहाँ पे भी नफी हो गई है। ये जो हम कह रहे हैं, ये दलाइल से बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते, हवा में तीर नहीं चलाते। ये जो मेरी बातें हैं ये बिल्कुल लॉजिक पे मबनी है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है मियां साहब, मैं असल में मैं बैत करके अहमदी हुआ हूँ। ये मेरी अपना तालीम देख लें, मैं अहमदी नया हुआ हूँ। अली अहमद भाई, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस आना मानते हैं जी? आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वापस आना मानते हैं? देखिए, मेरे मानने की तो बात जो है ना वो सिर्फ वो छोड़ दे, आप मानते हैं हाँ या ना, में उन्हें बता दें ताकि उन्हें पता हो कि वो जवाब क्या दे रहे हैं ना। नहीं, कुरान और हदीस में किसी जगह ईसा के आने की कोई खबर नहीं है। कुरान में है, सूरह ज़ुखरुफ खोले 58।
اگر ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا زندہ ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، مگر مسیر کی خبر دی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہود کی خبر دی کہ میری امت یہود کے ایسے مشابہ ہو جائے گی جیسے ایک امت دوسری جوتی، ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصلتاً کہا یا صفاتی طور پہ کہا؟ یہ بتا دیں آپ. بتائیں ذرا علی احمد صاحب. جو فوت ہو جائے اس کے آنے کی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں. نہیں، صفت کے طور پہ ایک کا نام دوسرے کو دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے. نبی پاک نے کہا جس نے فرعون کو دیکھنا ہو جیل کو دیکھ لے. ایسی کوئی اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے آنے کی کوئی خبریں جو ہیں وہ درست یار نہیں آپ کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں. ایران میں ایک پہلوان گزرا ہے رستم، پاکستان میں ایک پہلوان گزرا ہے اس کا نام بھی رستم انہوں نے دے دیا اس کے نام سے مل کے. یہاں میں اٹالین میں اٹلی میں ایک آرٹسٹ گزرا ہے اس کا نام ہے مائیکل اینجلو. ہم آج کی ڈیٹ میں 700 سال بعد کسی کو نام دے دیتے ہیں یہ جو اس صدی کا مائیکل اینجلو ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے. ایسے میرے کو سوال میں بھی ڈالو میاں صاحب. یار میاں ایک اور میں دلیل دیتا ہوں، آپ ذرا غور سے بولتے ہیں وہ پہلے بار بولنا تو انہوں نے. ایک اور دلیل دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. کر سکتے ہیں تصویر تقریر سننے لیے بیٹھے ہیں. بندہ ہے. ایک اور دلیل لے لیں اس کے بعد آپ کی پہلی دلیل تو جواب دے لو پھر آگے چل. نہیں، آخری دلیل لے لیں. یہ بہت لاجیکل ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں قسم سے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا رنگ اختیار کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کا ایک نام المصور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک صفاتی طور پہ المصور بھیجا. اس نے ایک پینٹنگ بنائی، وہ جو پینٹنگ تھی اس کا فریم بھی مضبوط تھا، وہ جاذب نظر تھی، اپنی طرف لوگوں کو اٹریکشن پیدا کرتی. یار یہ بات تو سن لیں، یہ دیکھنے سننے والی بات ہے. مکمل ہونے دیتے، خدا کا خوف کریں یار، آپ کیسے لوگ ہو؟ سن لیں یار، یہ بات سننے والی ہے. وہ جو آرٹسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو پینٹنگ ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی. اور لوگوں نے جب اسلام کا ابتدائی دور تھا یہ امت محمدیہ ایک پینٹنگ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو پینٹنگ ہے ٹکڑوں میں بٹ جائے گی. جب ٹکڑوں میں کوئی پینٹنگ بٹ جاتی ہے تو وہ اسی طرح کا ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، اسی لیول کا، وہ اس کو پینٹنگ کو ٹھیک کرتا ہے. کیا پینٹنگ جو ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے انہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ یہ اب جو پینٹنگ ہوگی اس کی جو بیس ہوگی وہ اپنی جگہ پہ قائم ہوگی، اس کے اوپر رنگ چڑھایا جائے گا جیسے ایک جگہ سے مٹی کو صاف کیا جاتا ہے. یہ ہے لب الباب ساری تقریر کا. میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں ہوں آرٹسٹ. ساری زندگی میں نے فلم انڈسٹری میں کام کیا، مگر میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میاں صاحب تسی میرے پرانے دوست ہو، انہاں لوکاں نہیں پتہ واٹس ایپ تو بھی یہ ساڈے نال سن. تے میاں صاحب ماشاءاللہ اور میں نے جی شاہ نور اسٹوڈیو میں بہت بڑی بڑی تصویریں بناتا تھا، 40 فٹ کی 50 فٹ کی. اور میرا آپ کام دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ شخص آرٹسٹ ہو سکتا ہے اتنا یہ پڑھ لکھ کے. اور جو میرے استاد تھے جہاں سے میں نے آرٹ کا کام سیکھا تھا وہ پاکستان کے ٹاپ کے آرٹسٹ تھے. تو ان کی طوطی بولتی تھی ایس ایم خالد. ان کے دادا جی ہیں سید ارشاد علی اور سید ممتاز علی، وہ مسیح موعود علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں گروپ فوٹو میں. وہ میرے استاد تھے، وہ بھی احمدی تھے. آج میں بتا رہا ہوں سچ، لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت. میں کہہ رہا ہوں میں اس کام میں 40 سال میں اسپیشلسٹ ہوں. میں جیسی تصویر ادھر اٹلی میں وہ کہتے ہیں لوگ کہ تم جیسی کوئی بنا ہی نہیں سکتا. حقیقت میں کہہ رہا ہوں. اور میں نے یہ جو سب کچھ جو پایا ہے نا یہ مسیح موعود علیہ السلام کے ان کے نظریات سے پایا. وہ جو نظریات رکھتے ہیں یہ کیوں نہیں آپ لوگ سمجھتے یار؟ کب سمجھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ سمجھائے گا. اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. یہ لوگ پھر نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دے رہا ہے، ان کی بدبختی ان پہ نازل ہوئی ہے، پھر نہیں سمجھ رہے. یار ایک الفاظ ہیں اس پہ میں اینڈ کرتا ہوں. خلیفہ رب نے کہا کہ اگر بیماری یہودیت ہے تو علاج مسیحیت ہے. میں جی کافی پرانا احمدی ہوں. اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں بڑی ایمان فروز ہے. میرا بچہ تھا جب میں احمدی ہوا، وہ 2.5 سال کا تھا. میں نے اس کو تصویر دکھائی، کلوز اپ تھی. میں نے کہا بیٹا یہ کس کی تصویر ہے؟ کہتا پاپا یہ آدم کی تصویر ہے. میں اللہ کے پاک ناموں کی قسم کھا کے کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بیٹا کہتا ہے یہ پاپا آدم کی تصویر. 2.5 سال کے بچے کو کیا پتا کہ یہ کون لوگ ہے، یہ کون شخص ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
2.5 साल का मेरा बेटा कहता है ये पापा ये आदम की तस्वीर है, और मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब, नीज इब्राहिम नस्लें हैं मेरी बेशुमार, और दाऊदी सिफत के मुझे फल लगे, और जालूत है मेरा शिकार। असल में जो ईसा अलैहिस्सलाम थे ना, उन्होंने दाऊद की तख्तो ताज पे बैठना था। जब वो आए उन्होंने बोला कि जी आपकी तख्तो ताज किधर है, बादशाहत किधर है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी ज़मीनी बादशाहत नहीं है और मेरी आसमानी बादशाहत है। इस बात को समझें, कोशिश करें, गौर करें, जरा फिक्र करें। ये बैठा हुआ है, मैं यार झूठ नहीं बोल हैं। जज़ाकल्लाह जज़ा। आपने माशाल्लाह वो अली अहमद साहब लाजवाब हो गए, वो हमें रोजाना आके पूछते हैं, आज आपने समझा दिया उनको। यार आप अजीबो गरीब मंतक देते हैं, ये जो मंतक है मैंने बयान किया, मैं आर्टिस्ट हो के मैंने जो पढ़ा लिखा है, जो भी तकरीबन 20-25 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मसीह मौद किताबें पढ़ता हूँ और ब्रोडे सुनता हूँ और मैं इल्म हासिल करता हूँ। इल्म किसी की विरासत नहीं है, इल्म हासिल करो खा तुम एक चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और मसीह ने जब आना था और जो वो लिखा है आंसर ने, वो खजाने लुटाएगा, वो जो रूहानी ही इल्मी खजाने थे, ना कि ज़ाहरी डॉलर और पाउंड। और लिखा है कि मियां साहब मैंने आपको ना मियां साहब मैंने आपको फॉलो किया है। नेक्स्ट टाइम जब भी अली अहमद भाई का सवाल होगा ना, मैं आपको ब्रॉड शेयर करूंगा, आपने जरूर आना, आपने बड़े अच्छे जवाब। ठीक है यार, मैं असल में मैं बोल मुझे मियां साहब मेरी बात सुने एक मियां साहब, मुझे याद आ गया और आप मुझे भी जानते हैं, और यहाँ पे सारे अहमदी हैं, इसलिए इतना ज्यादा वो ना करें, सारे अहमदी हैं तो आपको ऐसे लगे हुए थे। बहरहाल आपका आर्टिस्ट वर्क मैंने देखा है सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, बहुत मजा आया था वो देख के। आप उसको भी टिकटॉक पे खिंचड़ा है आपने, भले आपको फॉलो तो करूँ पहले मैं। ठीक है बहरहाल, मैं जी इस लाइन से 40 साल से मुंसलिक हूँ, और मैं जो काम करता हूँ, यहाँ मैं रहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं यार तुम्हारे, मैं शर्तें लग गई हैं तस्वीर पे, कहते हैं ये हाथ की बनी ही नहीं है तस्वीर। हाँ नहीं, आपने टिकटॉक पे शेयर किया है अपना वो सारा काम के? नहीं नहीं, मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर नहीं किया तो उसको जरूर करें, ताकि अगर कोई किसी को भी कुछ वो काम चाहिए वो आपसे तो वो ले। वो कैसे करूं यार टिकटॉक पे? यार वो उसका जब आप कर रहे बना रहे होते हो वो, या बना हुआ है उसको, उसकी वीडियो छोटी सी बना के उसको अपलोड करें ना अपने पेजेस पे, अपना कांटेक्ट वहाँ पे दें ताकि लोग आपसे राब्ता करें, और अगर कुछ न कुछ बनवाना हो मुझे तो करना नहीं आता टिकटॉक, आपसे कैसे करूँ? अरे यार ये बड़ा मसला है, मैं बच्चे से पूछूंगा अपने से। अली भाई कमाल के आर्टिस्ट है सर, इनके जो हाथ में कोई अल्लाह ने हुनर दिया है सर, सुभान अल्लाह। बड़ा मजा है मोहम्मद अहमद भाई, हाथ वाला तो हमें नहीं पता, आप बता रहे हैं तो हम मान लेते हैं, उनकी बातों में बहुत मजा है। शरीता ने भी उन्होंने तस्वीर ऐसी खिंची है कि घूम घुमा के मतलब कि सेट कर देती है ना। और यार आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जॉर्ज बुश की पोर्ट्रेट उनको बना के भेजी, फ्रांस में तरह की भेजी, एलिजाबेथ टेलर की, इनके लेटर है मेरे नाम पे, इन्होंने कहा यार थैंक यू, हमारे दफ्तर में आपकी बनी हुई तस्वीरें मैंने इनको भेजी हुई हैं तस्वीरें। जर्मन अखबार में मेरा 5 दफा इंटरव्यू आया। ज़ाहिद रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तस्वीर बनाई, वो भी तुसी तो नहीं कितने बनाई, मैं आपको उसने एमजी किया है, कोई ओरिजिनल थोड़ी बनाई। हाँ ओरिजिनल नहीं है, उससे अच्छी तो अपने मियां साहब बना लेंगे। एक बंदा रहता है इटली में, उसका नाम बस यार क्या मैंने मुझको आमिर नजीर की फोटो बनानी है आपने। मैं अच्छा मैं एक हाँ यार छोड़े यार, वो बदतमीज आदमी है, क्या बात करनी है। अच्छा मियां साहब हाँ जी आपने एक मूसवी शरीयत का जिक्र किया, फिर उसमें विरासत का जिक्र किया, लेकिन उसमें आपने कानून जो है वो इस्लामी शरीयत का डाला है। मूसवी शरीयत में क्या कानून था विरासत की ट्रांसफर का? सैर कर करके पतली हो गई। क्या कानून था मसलन समझ नहीं आई। आपने बेसिकली शरीयत में जो मूसवी शरीयत में उसमें आपने इस्लामी शरीयत का कानून विरासत का डाला कि उनको नहीं जाती मुआवजा। तो अरे नहीं यार, नहीं उन्होंने अल्लाह ताला नहीं दोनों असल में दोनों जो नबी है ना, ये दोनों जो अंबिया कराम होते हैं ना, वो असल में भाई होते हैं। जो तौहीद होती है नबी की, वो कहते हैं जिल्ली और रोही तौर पे हम तौहीद को बाप कहते हैं और शरीयत को माँ कहते हैं। वो जो शरीयत है ना उसको हम माँ का रुतबा देते हैं। हाँ तो उस शरीयत में विरासत की ट्रांसफर का क्या कानून था? ये लिखा हुआ है जी, आंसर उन्होंने पेश कोई किया है मेरी उम्मत। मियां साहब ये सवाल सुन लें, वो नीचे सवाल आया, वो शो नहीं हो पा रहा, पर वो जो हम देख पा रहे हैं कि जॉर्ज बुश जिसने इतने मुसलमानों को मारा, आपने उसकी पेंटिंग बना के भेज दी, तो किसी दूसरे की बनाने में क्या मसला है? ये सवाल नीचे पूछा गया। दूसरे की वो मेरे सामने होगी तो मैं बना दूंगा ना, ये कौन सी बात है?
اور پہلے بنائی تھی میاں صاحب ہم نے بنانے میں تو کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی یار میں نے ایک سیدھی سی بات کی ہے کہ جو پینٹنگ بنائی ہے علامہ صاحب نے اٹلی جا کے مل لو. نہیں یار یہ بات سنیں, بات سنیں یار, بڑی غور طلب بات ہے. آنسر نے کہا تھا میں نے ایک پینٹنگ بنائی ہے, یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی, اس کو ٹھیک کون کرے گا, اس کو اپنے نام سے یاد کیا, اسماؤ اسمی کے. یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ صحیح بات, وہ اس پینٹنگ کو ٹھیک کرے گا اور نئے سرے سے ٹھیک کرے گا, مگر بیس مضبوط, بیس اس کی قائم ہوگی, اس بیس کو نہیں چھیڑا جائے گا, اس کے اور دوبارہ رنگوں میں ڈالا جائے گا. یہ اس بات کو سمجھیں یار. میاں صاحب یہ جواب بھی آئی ہے کہ یار بش نے بعد میں لوگوں کو مارا تھا یا بدتمیزیاں کی تھی, آپ نے اس سے پہلے شاید لگتا ہے پینٹنگ بنا دی تھی. جزاکم اللہ, بڑا اچھا جواب ہے. ہاں بہرحال جو بھی ہے, میں تو یار مثلا اتنا نہیں جانتا, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی مربی نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں. یعنی کہ فلم انڈسٹری میں نے ساری زندگی کام کیا, میں صرف اپنی حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں یار یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی رائے کی دانے برابر بھی نہیں ہے. مگر جو لوگ مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیش گوئی ہے کہ مسیح کو کوئی نہیں, میرے مخالفین کوئی نہیں آتے دیکھیں گے, ان کی اولاد مرے گی, وہ بھی نہیں دیکھے گی, پھر یکدم جو دانشور لوگ ہوں گے ان کے دلوں میں گھبراہٹ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا, پھر یکدم لوگ محمدیت کی طرف کنورٹ ہو جائیں گے. اور نبی کا جو وجود ہوتا ہے نا, وہ ایک تخم ریزی کرنے آتا ہے, بیج کی مانند ہوتا ہے, پھر درخت بڑھتا ہے, پھر شاخیں بنتی ہیں, پھر پھل لگتا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. میاں صاحب آج بہت مزہ آیا, نہیں تو یہ علی احمد بھائی تو ہمیں بولنے ہی نہیں دیتے نا. نہیں یار, میں جو باتیں کر رہا ہوں میں سچی بات کر رہا ہوں, دل سے کر رہا ہوں, دل کی گہرائی سے کر رہا ہوں, جھوٹ نہیں ہے بالکل بھی. آج علی احمد صاحب خاموش ہو گئے, ورنہ وہ آگے سے آگے بولتے رہتے. نہیں یار, آپ آئیں بائیں شائیں باتیں بناتے ہیں, آپ لاجیکلی بات بتائیں. یہ جو اپنا سلسلہ موسوی ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا, کہاں سے ختم ہوا؟ جیسے ہم لوگ دائرہ کبھی پرکار لے کے دائرہ بنایا آپ لوگوں نے, پرکار لے کے دائرہ جب بنایا. ہاں جی, جب میتھ میں جیومیٹری کے کوشچن کرتے تھے تب بناتے تھے ہم. نہیں, آپ دائرہ بنائے نا پرکار سے, جہاں سے شروع کریں گے وہاں پہ آگے ختم ہو جائے گا. حضرت اسحاق سے شروع ہوا, حضرت زکریا پہ آگے ختم ہو گیا. اور عیسیٰ بن مریم کو بن باپ پیدا کرنے میں یہ حکمت تھی کہ اب اسی سلسلے میں کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے ہیں کہ وہ جیسے کہا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارے بھائیوں میں ایک رسول برپا کروں گا. بظاہر تو مخاطب بنی اسرائیل ہیں, مگر آ کہاں سے رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. اس بات کو غور کریں, غور و فکر کریں یار. آپ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ میاں صاحب, ہاں جی صاحب, ہاں جی, اتنے جنے بھی بیٹھے نے نا سارے احمدی نے سوائے میرے. اچھا, ایک بندہ جیڑا نا, گل سن لیا کرو دوجے دی بھی, ایک بندہ جیڑا او دا مسئلہ یہ ہے, انہوں ایک احمدی نے چیلنج کیتا ہے کہ تو اپنی احمدیت ثابت کر. احمدی نو احمدیت نے ثابت چیلنج کیتا ہویا ہے کہ تو اپنی احمدیت ثابت کر کے تو احمدی ہے نہیں. اگر تو اپنے آپ نے ثابت کر دیں تو احمدی ہیں تو 500 یورو میرے کو انعام لینا ہے. اچھا, اسے کوئی مسئلہ سمجھنا نہیں ہے کہ موسوی سلسلے دا آئے گا, فلانا آئے گا, این جائے گا, ان جائے گا. سیدھا انہوں کیا $5 کی رسید کٹا کے لے آیا, میں تمہیں احمدی مان لاں گا. وہ کٹا ہی نہیں سک رہا, وہ بھی احمدی ہے. اور یار بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آج وسلم کے دور میں بھی منافقین شامل ہو گئے تھے, اور باقاعدہ آیت اتری ہے منافقین کے متعلق. ہو سکتا ہے کوئی منافق, میں اپنے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جرمنی میں رہا ہوں, ایک شخص تھا, اس نے کیس کروایا تھا اس کا لاہوری احمدی کا. بعد میں وہ کہتا کہ میں کوئی احمدی نہیں ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. ہو سکتا ہے. یہ جو احمد والی بات سن رہی ہے, مجھے علی اکبر تیرے نال گیم موڑن دی کوشش کیتی ہے. ایک سیکنڈ یار, آخری بات سن لیں. میں بتاتا ہوں, وہ جو مجدد الفسانی ہے صاحب کی یار, نہیں مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ محمدی شان کا رفع ہوگا اور احمدی شان کا نزول ہوگا. یہ دیکھو دونوں باتیں دیکھ لیں, ان پہ غور و فکر کریں. رفع جو ہوتا ہے نا درجات کی بلندی ہے, اور نزول جو ہے نا یہ انسانی فائدے کے لیے آتا ہے. لفظ جہاں جہاں نزول ہوا ہے,
और मियां वसल्लम साहब का नजूल भी शामिल है, इसमें शामिल है। हो गया हाँ ਅਲੀ मियां ਅਕਬਰ साहब ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਪੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਦਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਸੌਂ ਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਮੀਆਂ ਸੌਂ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। मियां साहब ਹੁਣ मैंने ਮੈਂ आपको ਕਿਹਾ ਘੰਟਾ बताया, आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं। ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 500 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ? ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ ਵੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਆ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 500 ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋ ਸਾਬਤ ਦਾ ਕਰੋ, ਇਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਮੇਰੀ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ- ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਮੇਰੀ- ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ- ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਬੰਦੇ- ਦੂਜੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪ ਕੀ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਕਹਿਮਦੀ ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਏਲਚੀ ਨਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਦੋਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਈਮਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ? ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਗਾ? ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਮਤਲਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਅਸੀਂ ਲਓ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਖਬੀਸ ਨਫਸ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈਮਾਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। आजाद भाई, आप बताएंगे ईमान, आप तो आजाद नहीं हो ये हर चीज से। हाँ, तो लेकिन मुझे ईमान का पता है, ईमान क्या है। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸੀਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਰਸੀਦ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 112 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਤੇ 5 ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੌੜ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਪਰਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਥੱਕਿਆ ਜਾ ਆਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। वो अली अहमद भाई तो वो भी जवाब अच्छा दे सकते हैं, तो उनसे भी लेते हैं। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਬਾਨੀ ਮੁਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫੁੱਫੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤਾਈ ਆ, ਅਲੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, आपको ये जवाब देना ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ये जो बंदा कह रहा है कि अली अहमद साहब चुप हो। फलां बंदे ने ये कहा कि तुम अपनी अहमदियत साबित करो, तुम रसीद ले आओ, ये बंदा कौन है? ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 112 ਸਾਹਿਬ मैं अहमदी मुसलमान अरबी में इसको कहते हैं मुनाफिक और पंजाबी में कहते हैं दोगला। ये अच्छा, वो सवाल कीता, जवाब नहीं लेना, आगे सवाल। मैं अहमदी मुसलमानों से पंजाबी- पूछ रहा हूँ कि वो आपको जानते हैं कि आप कौन है, आप अहमदी हैं या कौन है? रऊफ साहब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सवाल बड़ा माकूल पूछा है और आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपको बता देता हूँ, इस ब्रॉड पे इश्तिहार लगाया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि एक अहम बात करने देंगे।
नहीं जी, मैं आपकी बात नहीं तो सुनना सब चाहता। उसमें मैं उन्होंने इश्तिहार मौलवी साहब से या किसी और से मुझे जवाब दें कि क्या अच्छा ये आपने बंदा जो मेरे साथ बात कर रहा है ये अहमदी है, इसको जानते हैं आप? नहीं, उन्होंने कहा है थोड़ी देर पहले मैं अहमदी नहीं हूँ, उन्होंने कहा मेरे अलावा बाकी सारे अहमदी हैं। हाँ। और दूसरा जो इश्तिहार है वो उतर चुका है, वो जब लगा था तो उस वक्त कर लेते, अब तो इश्तिहार भी नहीं है, तो ये क्यों बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। मौलवी साहब, दूसरी बात यह है कि अगर किसी अहमदी ने किसी अहमदी से कोई डिमांड की है कि तुम ये करो, तुम रसीद लाओ, तो वो अहमदियों का आपस का मामला है। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो जाके अहमदियों के मामले में दखल देते हो? मैं नहीं दखल दे रहा, मैंने आपको बताने की कोशिश की नहीं, हमें है। ये जरूरत नहीं सवाल है, आपने हमें पूछा है, जरूरत नहीं है उस बंदे के बताने की जो अहमदी नहीं है। आपने पूछा है तो मैंने बताया। अगर नहीं मैंने जरूरत तो ना आपसे पूछे, नहीं पूछी ना भाई। पूछे, ना पूछे। मैंने आपसे नहीं पूछा, ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अहमदियों से पूछ रहा हूँ। आप मेरे से ही मुखातिब है ना कि तुम कौन हो, तो ये नो नो वो नो सारी नो नो, मैंने बात। कहा कि इसके बारे में मुझे बताएं ये बंदा कौन है। तो अभी मौलवी साहब ने बताया है कि ये बंदे ने अभी कहा है कि मैं अहमदी नहीं हूँ। अगर अहमदी नहीं है कोई, तो उसको अहमदियों के मामले में दखल देने की कतई कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है अब्दुल भाई, ये बात तो सही है। अहमदी अहमदी को कह सकता है, तुम अहमदियत साबित करो, दूसरा नहीं करो। मैं नहीं कह रहा उससे। मलक साहब पहले नहीं मलक साहब ऐसे नहीं, पहले सलाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपसे, हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अब्दुल भाई, ये गांव के वो सबसे बड़े नाई हैं जो इधर उधर जाते नहीं है। अब मेरा पैगाम ले जाओ। ये मलक साहब ऐसे ना ये बात ना करें। अब वो समझ गए हैं, जब अब्दुल साहब ने उनको बता दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूंगा। मैं भी समझ गया हूँ कि ये अहमदी अहमदी को पूछ सकता है कि तुम अहमदियत साबित करो। मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो नहीं। बात खत्म हो गई। अहमदी जो है वो अहमदी से जो मर्जी पूछे या ना पूछे, ये उनका आपस का हाँ, मैं कब पूछ, मैंने नहीं कहा। अहमदी ने अहमदियत साबित करने पे 500 यूरो का इनाम रखा है। वो उसका मसला है, आपका नहीं है। अब मैं यही कह रहा हूँ, मेरा नहीं है, उसी का ही मसला है, उसी को कहा है। तो उसको करने दें, आप साबित करे, मुझे नहीं। आप पैगाम मुझे लेकर ना आए कि उसने ये पैगाम दिया। मैं नहीं पैगाम लेके आया, यहाँ इश्तिहार लगे हुए हैं। हाँ, लगे रहने इश्तिहार कोई नहीं, हमने कोई इश्तिहार नजर नहीं आ रहा। ये ऐसी गलत बात ना करें। वो जब देखेंगे तो उसका जवाब दे लेंगे खुद ही। यहाँ वीडियो अभी आपको सुनवा देते हैं। अली अहमद भाई, सुन ले, यहाँ पे इश्तिहार नहीं लगा था, शायद आपने गौर से ब्रॉड नहीं देखी थी हमारी। वो एक और आईडी थी जनाब मोहतरम की, उसने अपनी डीपी पे लगाया था, वो हमारी ब्रॉड पे बैठा हुआ था, हमने इश्तिहार नहीं लगाया था, वो आके बैठा था, उसने अपनी डीपी पे लगाया हुआ था। सर, हमने कोई इश्तिहार नहीं लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंफर्म। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ बड़ा इश्तिहार किसने किया था, वो खुद तो नहीं कर सकता। वो नहीं लगा, वो मॉड था इस ब्रॉड का, उसने आके लगाया, फिर हमने उसको हटा दिया था। हमने कहा तो हटाओ वो अगर मॉड है और उसने वो लगाया है इश्तिहार, तो यहाँ का जो अली साहब सुन ले यार, बात सुन भी लिया करें। और यहाँ बात तो सुन ले अली साहब मेरी पूरी, आप क्योंकि कब से लगे हुए हैं। इश्तिहार उसने अपनी डीपी पे लगाया हुआ था, वो मॉड था, वो भरा हुआ था। जब मैं आया था, मैं उससे कहा था कि भाई यहाँ पे इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं है, जाके आप अपनी ब्रॉड चलाओ, वहां जाके लगाओ। और फिर वो चला गया था यहाँ से। हमने कोई इश्तिहार नहीं लगाया था सर, आप एक बात को मिक्स कर रहे हैं। वो आपने शायद उस समय देखा था जब वो बैठा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैं कहा था कि अगर आपने इश्तिहार लगाना है तो अपनी ब्रॉड पे जाके लगाओ, इधर ना लगाओ। अब आप बात कर सकते हैं अली भाई। आप हैप्पी हार्ट भाई, कोई भी कमेंट ना, कॉपी पेस्ट ना हो, वो जिसका भी हो वो म्यूट हो जाता है माजरत के साथ। कि जो आदमी अहमदी नहीं है और अहमदियों में रखना डालने की कोशिश करता है, उसको बिठाना नहीं चाहिए अपने ब्रॉड पे, नहीं लेना चाहिए। अब्दुल भाई ठीक है, वो समझ गए आपकी बात। मेरा ख्याल है आप इसको खत्म करते हैं, मजीद वो इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे। उम्मीद तो है कोई और आदमी है जिसका कोई सवाल हो, इस्लाम की उमूमी तालीमात के बारे में कोई जानना चाहता है, या अहमदी अकायद के बारे में जानना चाहता है, उसके ऊपर मैं उसके सवाल का हम जवाब देते हैं। हमने जो अहमदी मुसलमान जो ब्राडे लगाते हैं, उनका मिशन एक होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीमात फैले दुनिया में, और लोगों को कुरान करीम की तालीमात का बताया जाए। तो इस मकसद को मद्देनजर रखें और तबलीग को अवलियत दें, तबलीग को अहमियत दें।
اس میں عبدل بھائی میں تھوڑا سا بتا دوں، ہم صرف بیٹھے ہوتے ہیں خود آپس میں ہی نا، تو تبلیغ جو ہے وہ اس طرح نہیں ادھر ہوتی نا، صرف جو بھی آج جس نے جو بھی بات رکھتا ہے اس پہ بات ہو جاتی ہے. تو کیونکہ حافظ صاحب نے بولا ہوا ہے کہ تبلیغ سے وہ تھوڑی دیر وہ ذرا دور ہے. تو کون دور ہے؟ عبدل بھائی ایک منٹ، یہ میں علی احمد بھائی سے ایک بات پوچھنی ہے. وہ جو زاہد اسکانی اور عامر نذیر ایک دوسرے کی وہ اب میں کیا کہوں، وہ جو کر رہے ہیں ان کا تصفیہ فیصلہ کروا دیا انہوں نے؟ ہماری جو فکر پڑ جی گئی ہے. مرد صاحب اس کے بارے میں نا آپ ان سے نہ پوچھیں. انہوں نے بتایا تھا پچھلے دنوں کہ انہوں نے فون کیا تھا پرائیویٹ میں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کا نا مسئلہ حل ہو جائے تو ہو جائے گا. ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کسی کے مسائل کی، وہ کریں نہ کریں. علی احمد صاحب اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں نہیں نبھاتے، تو میرا خیال ہے رہنے دیں، علی احمد صاحب کو آزادی دیں. علی احمد صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، وہ صرف آ کر کے ایسے بس کرتے ہیں باتیں. ہمارے محترم دوست ہیں. علی احمد صاحب میوٹ کھول لیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے مجاہدین آتے ہیں پھر آپ میوٹ لگا لیتے ہیں. اچھا مولوی صاحب تسے میاں صاحب جان دے ہو؟ میں نا واٹس ایپ تو جاننا ہے، میں میسج کئی دفعہ نا عامر نذیر دے بارے یا کچھ دوستوں دے بارے جو کوئی گفتگو کسی گروپ چ ہو رہی ہوندی سی تو میسج کرتے سن. اچھا وہ میں پھر ایک دفعہ ٹیلی فون تے بھی گل بات ہوئی ایک دو دفعہ تے انہاں دسیا کہ میں بیعت کیتی ہے بعد وچ میں قدیشی احمدی نہیں. ہاں جی وہ نال مطالعہ نال کر رہے سن. انہوں دا مطالعہ تے بہت زیادہ ہے جماعت تے ماشاءاللہ. انہوں تے مسیح علیہ السلام دے شعر زبانی یاد نے تے نہیں وہ میرے خیال 20-25 سال ہی ہوئے نے انہوں نے، 25 سال ہوئے نے انہوں نے بیعت کیتیاں. لیکن بڑے مخلص ماشاءاللہ بڑے جذبے والے نے. عامر نذیر دی جیڑی کو گروپ وچ کوئی ایسی ویسی گل کردا سی تے فوری طور تے جواب بھیجدے سن کہ جواب دیو انہوں یا انہوں دسو گل. اچھا اچھا اچھا. انہوں کو تو جناب قرآن و حدیث دے نال تاریخ دا علم ہی ہے، مسیح علیہ السلام دے حوالے زبانی یاد نے ماشاءاللہ. جی محمد احمد صاحب آپ کیسے ہیں سر؟ آپ بھی جانتے ہیں ان کو؟ میرے خیال نے بتایا آپ بھی جانتے ہیں ان کو. نا علی احمد صاحب نیچے چلے گئے ہیں یار. ہمارے ایک واٹس ایپ گروپ میں بھی میاں صاحب تھے، ٹیلی فون جہاں پر ٹیلی فون گفتگو ہوتی ہے. جی جی اچھا. تو وہاں بھی ہماری گفتگو ان سے ہوتی تھی. نہیں بڑا اچھا کیا علی احمد صاحب نے کہ وہ سمجھ گئے ہیں، وگرنہ وہ تو روز ایک ہی موضوع انہوں نے پکڑا ہوا تھا. میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوتی ہے، ایک موضوع کو بار بار دہراتے چلے جائیں. ایک دفعہ بات ہو جائے تو میرا خیال مور دین انف ہوتی ہے. ہاں جی میں نے بھی روکا تھا، میں کہ یہ کچھ چھوڑ دیں اب اس کو، لیکن وہ پھر روزانہ ایک بات پہ چھیڑنا، اسی پہ بحث گھنٹہ 2 گھنٹے پرسوں بھی لگائے تھے، فائدہ نہیں ہوتا. بات کو زیادہ بات کرنے سے بات خراب ہو جاتی ہے، بلکہ الٹی اس کا اثر نہیں رہتا اس کا. اصل میں نا وہ سن کے وہی بات نا تو وہ سر میں بھی درد ہو جاتی ہے، اور یہ بات سچ ہے. اور اس دن بھی بات ہو گئی تھی کہ انٹرنیشنل کمیٹی ہر چیز دیکھ رہی ہے نا، وہ دیکھ لے گی، تو اس کے بعد اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. علی احمد بھائی تو انہوں نے ہی مجھے سمجھایا تھا کہ انٹرنیشنل کمیٹی یہ چیز ہے، خود سمجھا کے گئے ہیں پر سوال پھر وہی لے آئے ہیں. وعلیکم علی السلام. بھائی کدھر گئے؟ علی احمد بھائی کدھر گئے؟ میں ابھی آیا ہوں. دوسری آئی ڈی سے آ جائیں گے نا. اچھا 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 ٹھیک ہے. یہ رکھنا رکنا کا میں سن رہا تھا، وہ کس نے ڈال دیا رکھنا جماعت میں؟ کون ڈالتا ہے؟ وہ علی احمد صاحب کوشش اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں علی احمد صاحب. تو آج ان کو سمجھ آ گیا کہ وہ آئندہ اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے. کس موضوع پہ؟ یہ کوئی بھی تیلی لگانے والی، یہ جو بارود پھینکنے والی یا اس قسم کی، وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں نہیں اب تک کروں گا. بس ٹھیک ہے. وہم کا علاج کتے ایجاد ہو جائے نا. وہ 5 روپے کی رسید روزانہ 5 روپے کی رسید روزانہ کھول دیتے ہیں نا کہ وہ روکے. اس ٹائم دنیا پہ اشد ضرور ہے وہم کا علاج کتے نکل آئے نا. بڑے مسائل ہے نا محمد احمد بھائی، اور وہ وہم عبدل بھائی نے آ کے بولا ہاں جی جسے وہم ہے میرے سامنے رکھے. عبدل بھائی نے آ کے بولا وہ چلے گئے.
अब्दुल भाई ने क्या करना था, मुझे समझाओ तो सही। अब्दुल भाई ने सवाल किया था कि पहले आप जो सवाल कर रहे हैं कि 5 रुपए की रसीद दिखाओ, आप कौन हो? हैं मेरी आवाज चली गई थी, अब बताओ। अब्दुल भाई ने सवाल किया था कि आप जो सवाल उठा रहे हो 5 रुपए की रसीद था, तो वो कहते हैं जी अहमदी ने उठाया। तो अगर अहमदी जाने, अगला अहमदी जाने, आप कौन होते सवाल करने वाले जब आप अहमदी नहीं हो? तो जब आप कोई अहमदी नहीं हो तो आपको किसने कहा कि अंदर आके पूछो फलां बंदे से रसीद दिखाइएगा? आप अहमदी हो? तो कहते नहीं। तो फिर वहां से उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारा कोई राइट ही नहीं बात करने का। अहमदी सवाल कर रहा है, अगला अहमदी जवाब दे ना दे, आप दरमियान में क्यों फंसे हुए हैं ना? तो अभी समझ आई बात की। अब्दुल भाई कहते हैं कोई अहमदी होवे ते ऐ सवाल करे, फिर मैं जवाब देवांगा। नहीं चैलेंज किसी ने लाया ते कैसे अहमदी दे बारे च लाया, ओदा भी जवाब अब्दुल भाई देणगे। गलत कर रहे हैं मोहम्मद अहमद साहब, ये मोहम्मद भाई आप तेजी ना दिखाएं। उन्होंने कहा है कि कोई इल्मी यानी कि जमात के ऊपर कोई एतराज़ है तो उसके ऊपर सवाल करे, मैं उसका जवाब दूंगा इल्मी वाले से। ये बात किया है। देखें, मैं इधर मौजूद हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, गौर से सुने। करें जी, करें, आप करें। अहमदी मुसलमान सारी दुनिया में इत्तेहाद और अखुवत की लड़ी में परोए हुए हैं। बहुत ज़्यादा। जो अहमदियत के मुखालिफिन हैं वो इस चीज़ को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। वो इस तरह बिखरे हुए हैं कि जिस तरह एक तस्बीह के वो जो धागा होता है उसको तोड़ दें धागे को। आप सुन रहे हैं या नहीं सुन सकते? मैं सुन रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मोहम्मद अहमद साहब माइक बंद करें और मेरी बात ध्यान से सुने। हाँ जी सुनाए, मैं सुन रहा हूँ। आपका माइक खुला हुआ है, माइक बंद करें। माइक नहीं बंद हो रहा, थोड़ा फोन दूर है। शोर बड़ा आता है, असल में शोर बड़ा आ रहा है पीछे। मोहम्मद अहमद साहब आप ऐसे ही सुनानी पड़ेगी, मैं ऐसे ही सुनूंगा। अच्छा, फिर वेट कर लें क्योंकि जब आपका माइक ये मोहम्मद अहमद अहमदी है जी, ये बड़े पक्के सच्चे और बड़े। मैं नहीं अहमदी। मसला ये भी मुनकर हो गया, ये भी मुनकर हो गया। आज इन्होंने बता दिया है, आज इन्होंने ऐलान कर दिया। आज उन्होंने ऐलान कर दिया। पहले हमेशा कहते थे मैं सच्चा अहमदी हूँ। बात सुने। आज इन्होंने ऐलान कर दिया। आज इन्होंने ऐलान कर दिया जी। मैं उम्र में जरीउल्लाह से बहुत बड़ा हूँ उम्र में। इसी तरह जो स्टूडेंट भाई है उसकी उम्र से मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन वो एक बार मुझे कहते हैं कि माइक बंद करो तो मैं 1 सेकंड से माइक बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं अहमदी मुसलमान हूँ। अहमदियों में इताअत का जज्बा पाया जाता है, बचपन से हमें ये सिखाया जाता है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप बदतमीज़ी कर रहे हैं और सरकशी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बात अपनी पूरी करूँगा। अहमदी मुसलमानों के अंदर सारी दुनिया में अखुवत और इत्तेहाद की लड़ी में परोए हुए हैं अहमदी, और जो गैर अहमदी मुखालिफिन हैं उनको ये चीज़ बहुत चुभती है। वो खुद इस तरह बिखरे हुए हैं जिस तरह एक तस्बीह के धागे को तोड़ दें तो मोती ज़मीन पर बिखर जाते हैं, इस तरह वो बिखरे हुए हैं और हमारे इत्तेहाद को वो देख नहीं सकते। इसलिए वो अंदर भेजते हैं कोई बंदा, वो कोई चादर ओढ़ के अहमदियत की, तो आके कहता है वो देखो जी फलां अहमदी ने इश्तिहार लगा दिया है, तुम 5 रुपए की रसीद लेके आओ, मैं ये हो जाएगा भाई। ओ भाई, उसको क्यों बैठने देते हो? आपको पता है कि ये बंदा मुनाफिकत कर रहा है और जमात के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मत बिठाओ। ये बात हो रही थी, मैंने ये बात की थी कि जो भी इस तरह की बात करे, अहमदियों के इत्तेहाद को, अखुवत को नुकसान पहुंचाने वाली बात करे, उसकी बात को मत सुनो, उसकी बात को कोई अहमियत ना दो। मैं ये हर ब्रॉड पे कहूँगा और बार बार कहूँगा कि वो अहमदी मुसलमान जो खिलाफत की इताअत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ऐसे बंदे को कोई अहमियत ना दें जो उनके इत्तेहाद में रखना डालने की कोशिश करे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए जी। मोहम्मद अहमद साहब, अब आप बात कर सकते हैं। आप पहले वजाहत दें अपनी कि आप कौन हैं, उसके बाद फिर आगे चलें। नहीं, मैं कोई नहीं हूँ। आप तारीफें करें अपने फिरके की, अच्छी अच्छी और बातें बताएं, तो क्या होता है आपके फिरके में अच्छी अच्छी बातें बताएं। जो इन्होंने ऐलान किया है ना, मैं अहमदी नहीं हूँ, ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना जरा, क्योंकि ये अगर निकाल सकते हैं। शुरू करो अपने फिरके। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बड़ा ही फजल किया, बहुत फजल किया है।
मोहम्मद अहमद भाई, जब आप इस तरह किसी से बात कर रहे हो और वो आगे से यही कहे थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह, हाँ जी, वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, कितना मजा है। हाँ, जिसको जो मलिक साहब ये ना, ये आप मोहम्मद अहमद साहब को नहीं जानते, असल में कंपनी का असर होता है, वहाँ भी यही होता है कि जब आप बात कर रहे हो तो ये जो चंद अल्फाज है ना ये दोहराए जाते हैं। तो जब मोहम्मद अहमद भाई जो हैं ये वैसे तो माशाल्लाह बहुत ही इल्मी और बड़े गहरे बंदे हैं, लेकिन वो जो कंपनी का असर है ना वो बंदा उससे बच नहीं सकता। ये एक फितरी चीज़ है, इसके ऊपर ना इंसानी कंट्रोल है और ना ही इंसान कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कंपनियाँ जो है ना वो ऐसी कंपनियों से या तो दूर आ जाए या फिर मुख्तलिफ कंपनियों के चक्कर लगाते रहना चाहिए ताकि कंपनी जो है वो सर पर हावी ना हो जाए। ये मेरी भी बात के दरमियान ऐसे ही करते हैं, मुझे फील नहीं होता क्योंकि मेरे ये बहुत प्यारे दोस्त हैं। कई दफ़ा ये बड़ी हंसी भी करते हैं मेरी बात के ऊपर, मैं फिर भी क्योंकि ये मेरे छोटे भाई हैं इसलिए मुझे तो मोहब्बत है इनसे। मौलवी साहब जो है ना वो फील कर जाता है। मौलवी साहब खुद भी ऐसी इनके मुताबिक मैं भी बता दूं, ये मुझे स्पेशल मिलने आते हैं, जलसे पे मैं जाता हूं, ये वहाँ जलसे पे होते हैं। ये माशाल्लाह बहुत मुखलस और बहुत इल्मदार हैं, हमें इनसे कोई कभी शिकवा नहीं हुआ। लेकिन बात है तुम्हें ये होती है कि मौके के मुनासबत से बात कर जाते हैं। तो अल्लाह के फजल से इल्मदार बहुत है, हर चीज़ का हवाला, हर चीज़ का इल्म इनको पता है। हाँ जी, इल्म इनके पास बहुत शाला, बहुत अच्छा है अपना गुमन साहब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। असल में इनको ख़राब किया है ये ऊपर अली भाई बैठे हैं ना, ये सुरख डीपी वाले, ये इनका सारा कसूर है। ये नहीं आती विच ही झिड़कन लग पैंदे हो, विच ही प्यार करन लग पैंदे हो। मोहम्मद अहमद भाई, मैं भी थोड़ा सा फिर बोलना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में किसी ने अगर अहमदियत को डिफेंड किया बड़ी अच्छी तरह से, वो थोड़े मुझे नजर आए हैं ना कि दलील से और आराम और तहम्मुल और सब्र से, तो उनमें मोहम्मद अहमद भी सरे फरिश्त हैं। ये मैं अब्दुल भाई आपको बता दूं कि बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं ये दूसरों के सामने ना। आपने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि मोहम्मद अहमद भी सरे फहरिस्त है, या भी नहीं लगता, खाली मोहम्मद अहमद ही सरे फहरिस्त है। मेरी पिछले 40 साल लाइफ में खाओ यार, खुदा का नहीं असल में आप सब, मैं दूसरे चंद लोगों के पास भी गया हुआ हूं ना, तो कोई बता दें, कोई एक बता दें कि किसने इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से और बगैर अब्दुल भाई जो तबलीग करते हैं अली अकबर साहब, आप उनकी जो, क्योंकि उनका बहस मुनाजरे वाला स्टाइल नहीं है, लेकिन जो अपना एक जमात का जो मौक़िफ़ है एक तकरीरी अंदाज में, वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। तो आप ऐसा ना कहीं हर बंदे का एक अंदाज होता है। अब्दुल साहब का तो मुआवजा मैं कर रहा हूं, मुझे जब भी कभी हवाले की जरूरत पड़ती है तो मैं इन्हीं से राब्ता करता हूँ, यही मुझे हवाले भेजते हैं मोहम्मद अहमद साहब। नहीं अब अब्दुल भाई का तो सानी को नहीं है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं करो, ये ना करो। कल मैं कोई और गल करनी है तो फिर सारे ने चिड़कना, मुझे गुमराह आती रहने दो। बिल्कुल तारीफ नहीं करनी भाई, मैं तो तनकीद करनी है, तो मैं एक पता नाकद हां बहुत बड़ा मोहम्मद अहमद दा, मैनू गुमराह रहन दो। बहुत अल्लाह मियां तुहानू जुज़ा दे। एक पंजाबी मुहावरे दा मैनू तर्जमा नहीं समझ आ रही है की है। वो कहंदे ने इल्मो बस करियो यार, एदा की मतलब? यही ना बात, इसका मतलब नहीं आता। आप मौलवी साहब की तरफ आ जाते हैं कि मौलवी साहब जिस जगह पे बैठते हैं वो जगह क्या ठीक है? ये इस ब्रॉड के ऊपर बैठता हूँ, तो मुझे बताएं कि ये जगह ठीक है या गलत है? ये तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आते हैं ना, जहाँ पे ज्यादा देर आप बैठते हैं। ज्यादा देर ब्रॉड जो मॉर्निंग टाइम होती है जो आता है, इधर मैं बोलता ही नहीं, मैं काम पे होता हूँ। आमन नज़ीर के ब्राड में बैठते हैं। सैनी साहब की ब्रॉड है वहाँ पर आजकल थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर वो अली क्या नाम है, अली वाला गालिबाद, उसने डेरा डाला होता है, तो मैं फिर अवॉइड करता हूँ कि ना ही जाऊँ उस वक्त जब वो बैठा होता है। हुसैनी साहब बजाते खुद, हसानी साहब बजाते खुद एक शरीफ आदमी हैं। हुसैनी साहब के ऊपर ऐसे कोई बात ना करें, उनकी बरात के ऊपर लोग आके बैठते हैं, वो गलत करते हैं। लेकिन हुसैनी साहब के मुंह से कभी नहीं सुना हमने कि वो उन्होंने कोई बात की हो। हुसैनी साहब की क्या, वैसे पिछले एक माह का देखा जाए ना, शरीफ होना चाहिए पर शरीफ नवाज नहीं होना चाहिए ना, वो शरीफ नवाज है। जी मौलवी साहब क्या कह रहे थे आप? पिछले एक माह में अगर टाइम देखेंगे ना, किस ब्रॉड के ऊपर मैंने सबसे ज्यादा टाइम गुजारा है, तो ये ब्रॉड नंबर 1 होगी। उसके बाद बाकी ब्रॉडें आएंगी। जो आसा वाली वो मॉर्निंग टाइम होती है, रात को लेट वो टवाने वाले साहब जो भी होता है वो ब्रॉड लगाते हैं, उधर बैठता हूँ।
اس لیے مختلف میں کوئی ایک جگہ زیادہ ٹائم نہیں گزارتا، لیکن اگر ریشو دیکھی جائے تو اس براڈ کے اوپر سب سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ میں تبدیلی بھی آ گئی نا، ورنہ آپ کے اندر پہلے مولوی والی صفتیں کافی تھی نا. یار میں ابھی بھی مولوی ہوں، مولوی صاحب ہوں، تو یہ جب تک مولوی صاحب کی ڈی پی ہے تو مولوی صاحب ہی رہوں گا. تو وہ حدیث آپ پہ فٹ آ جاتی نا، بدترین مخلوق والی، تو پھر وہ آپ میرے اوپر نہیں کرتے، وہ اب مولویوں کے بارے میں لکھی ہے جو اس دور کے مولوی ہونے ہیں، میرے بارے میں نہیں ہے، میں مولوی صاحب ہوں. وہ علماء سو کے متعلق علیحدہ ہے یار. ایگزیکٹلی یہ علی پتہ نہیں علی اکبر اور جو سونی صاحب ہیں نیچے، ان دونوں کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہی نا علماء سو کے متعلق علماء اور سو بات کے بارے میں ہے، یہ گھما پھرا کے میرے بارے میں لے آتے ہیں. استغفر اللہ. سبحان اللہ. اپنے گناہ مولوی سے چھپانے کے لیے دوسروں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے گناہ بتایا کریں کہ آپ ماشاءاللہ کیا کرتے رہتے ہیں، وہ بتایا کریں. تو جناب کھلی کتاب ہوں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں جو کہ چھپی ہو. ہر براڈ کے اوپر میری، ہاں بڑی بڑی جو براڈیں ہیں جن میں سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں مجھے نہیں جگہ دی جاتی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی براڈیں جتنی بھی ہیں میں ادھر چلا جاتا ہوں جو بلا لیتے ہیں. لو جی، نیچے باجی کوثر صاحبہ تشریف فرما ہیں، اگر اوپر آ جائیں تو. باجی کوثر صاحبہ کی اگر طبیعت ٹھیک ہے، اگر کوئی بخار نزلہ نہیں ہے تو تشریف لے آئیں ادھر آ کے، ہمارے پاس ہی بیٹھے ہیں آ کے. عبدال صاحب موجود ہیں، آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ کے جوابات دیے جائیں گے. جی علی بھائی، آپ بات کرتے رہیں ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی نا.